Okay, beta. So in the nuclear physics, we have to study the famous equation E is equal to mc square. I hope everyone knows this. This is Einstein energy mass equation. According to this equation, energy can be converted into mass, and mass can be converted into energy as well. So this will be the most useful equation, and it will be using repeatedly in this chapter. Then we will look upon mass defect. This is a special concept linked to this equation. Then we will look upon binding energy. Okay, so this chapter is having two parts. So this one is part one, and if I talk about part two is radioactivity. Radioactivity, its nature, which is, random and spontaneous nature of decay. Then we will be looking upon half-life, and we will be looking upon some calculations. That's it. Okay, so two portions for this chapter. Right now we have to start this first one, which is Einstein's energy mass equation. Einstein's energy mass equation. Acha, this is very famous equation. It states that difference in energy is difference in mass times c square. This delta m is called mass defect. Mass defect means mass difference. And mass difference, of course, between two things. Okay, let's say if we talk about a nucleus, so you know that let's say if I say कि भाई I am talking about nucleus of helium, तो helium का जो nucleus होता है, let's say this is helium nucleus which is He4. So इसकी of course कोई ना कोई mass होएगी इस nucleus की. So we say कि its mass is m, this mass of the nucleus, कोई भी जो भी value है इसकी. Then next thing is कि this helium nucleus comprises of 4 nucleons, है ना, 4 nucleons, 2 protons and 2 neutrons. If we mass them separately, तो we can say कि भाई अलग अलग इनकी masses measure कर लो. This is proton, this is proton, this is neutron, this is neutron. So mass them separately. So we say okay, this is mass of proton, this is number of protons into mass of single proton plus number of neutrons into mass of single neutron. Like add their individual masses, separate masses, right? So technically if we look, we must say that there must be no difference between them. Okay, bhai, this nucleus is comprised of these 4 nucleons combined together. ऐसे ही है ना, तो there should not be any mass difference, but there is mass difference between these two. ठीक है, helium nucleus consists of 4 nucleons, and if you measure the mass of helium nucleus and then you measure the mass of separate neutrons and protons, so ideally speaking both the masses should be same, but actually in reality they are not the same. So the difference between their masses is called mass defect, right? And over here we say that this, like we say, sum of individual nucleons, sum of masses of individual nucleons is always greater than mass of their nucleus. Mass of their nucleus. Yes, अजीब सी बात है, but Einstein has the equation for this. ये इसी की explanation है, right? Okay, so that's the difference between them is called mass defect. So this is first mass defect in nucleus. So बेटा nucleus के लिए जो mass defect होता है delta m, उसका formula होता है number of protons into mass of one proton plus number of neutrons into mass of one neutron minus mass of their nucleus. So when you do this, you will get mass defect. This is number one.
number two in a nuclear reaction. Like I am telling you कि what is mass defect. Why I am telling you? Because I have to tell you Einstein energy mass equation E is equal to mc square. So इसमें जो delta m है, that is the mass defect. So first we are discussing that, then we'll discuss the other two things और फिर इस पूरी equation को देखेंगे. So this is mass defect for a nucleus. Now mass defect in a nuclear reaction का क्या मतलब होता है? Let's say there is any nuclear reaction, we can write fission reaction. So let me write the example of fission, which is uranium-236-92, and this uranium is splitting into two. One is barium and other is krypton, plus few neutrons and plus huge energy, right? So this is the nuclear reaction. You must be familiar with it. अब देखो इसमें mass defect क्या होएगा? इसमें अगर mass defect की बात करें तो बेटा this is your reactant, and these things are your products. Energy is also product, but right now we are talking about matter, ठीक है, mass की बात कर रहे हैं. So if we look upon these, तो we will say कि भाई अगर यूरेनियम, if we have uranium 1 gram यूरेनियम, तो बेरियम, क्रिप्टॉन और फ्यू न्यूट्रॉन्स की मास ऐड करके क्या 1 ग्राम ही बननी चाहिए? कॉमन सेंस यस, बननी चाहिए, बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मास इक्वल होती है. बट और इसको समझना ज़रा ज़्यादा आसान होएगा, बट वी से नो, रिएक्टेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑलवेज हैव हायर मास, एंड द प्रोडक्ट्स ऑलवेज हैव लोअर मास. ऑलवेज, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, ठीक है बेटा, वी हैव स्टार्टेड न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट डे, न्यू टॉपिक, ठीक है. सो ये इसमें मैं बता रहा हूँ सिर्फ आइंस्टाइन एनर्जी मास इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और फिर इसमें मैंने डेल्टा m का बताया कि ये मास डिफेक्ट होता है, मास डिफरेंस होता है, एंड वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज मास डिफरेंस. न्यूक्लियस का हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियस में क्या मास डिफरेंस का मतलब होता है, और इस न्यूक्लियस की ये वाली मास डिफेक्ट की इक्वेशन होती है. Mass defect, difference in mass is equal to number of protons into mass of single proton plus number of neutron into mass of single neutron minus mass of nucleus. This tells you mass defect. In the similar way, the second concept for mass defect is nuclear reactions: alpha decay, beta decay, gamma decay, nuclear fission, nuclear fusion, radioisotope making, whatever. कोई भी nuclear reaction आप लिख सकते हैं. So let's say every nuclear reaction is having two things. One is the reactant and one is the products. So we say that reactant mass is when you compare that to product mass. So we will say reactant mass is always bigger than product mass. And the difference between their masses is called mass defect, right? सो यही दो चीज़ें आती हैं इसमें, एग्ज़ाम में यही पूछता है, या तो न्यूक्लियस का पूछता है या फिर वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन का पूछता है, और इससे रिलेटेड कैलकुलेशन भी करवाता है. एंड हाउ यू डू दैट कैलकुलेशन? दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला. अगर न्यूक्लियस का होगा तो दिस इज़ द फार्मूला, न्यूक्लियस के लिए ये फार्मूला है. और अगर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए होएगा तो इट विल बी वेरी सिंपल. यू विल बी सेइंग डेल्टा एम इज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट्स इट. ये जो है ये इसका हो जाएगा. सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट मास डिफेक्ट. ओके, नाउ व्हाट इज सी स्क्वायर? दिस सी स्क्वायर इज 3.0 into 10⁸ meter per second. Of course, this is speed of electromagnetic radiation. What is this delta E? Delta E is, of course, amount of energy. लेकिन इसका एक और नाम भी है जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है EA. इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है. तो अभी जो हम सेक्शन 1 कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का, वी जस्ट हैव टू डील विद 3 मेन टॉपिक्स: E is mc स्क्वायर, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी. अभी मैं फर्स्ट आपको एक इसका रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है.
समझ लें कि मैं आपको इसकी समरी बता रहा हूँ, इन तीनों की समरी बता रहा हूँ। E इज इक्वल टू mc², एवरीवन नोज आइंस्टाइन की इक्वेशन थी। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन energy can be converted into mass and mass can be converted into energy, simple as that। इसमें हमें और क्या पता होना चाहिए, इस एनर्जी की यूनिट्स क्या होंगी, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मैंने आपको ये इनडायरेक्टली बता दिया कि मास डिफेक्ट का वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट डिफरेंस इन मैसेज, ठीक है। और ये टू सिनेरियोज होते हैं, वन इज न्यूक्लियस, वन इज न्यूक्लियर रिएक्शन। If it is nucleus, so we say mass defect is the difference between sum of individual nucleons, sum of masses of individual nucleons and mass of their combined nucleus. Or we say that mass defect in a nuclear reaction means this is difference between mass of the reactant and mass of the product. Okay, what is going to happen to this mass defect? ये जो mass difference है, फर्क आ रहा है mass का, वो जो mass है वो कहाँ जा रही है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आइंस्टाइन ने बताया था कि यार ये जो एनर्जी मास का डिफरेंस आएगा, ये अमाउंट एनर्जी में असल में कन्वर्ट हो रही है। तो इट मींस यू सिंपली पुट वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट ओवर देयर एंड देन यू मल्टीप्लाई दैट विद c², सो यू कैन गेट एनर्जी, राइट, कि कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होएगी। ओके, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, आप इसके सिर्फ वर्ड पे फोकस करें, बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब हो सकता है? एक एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो बॉन्ड्स बनाती है, किन के बीच में? न्यूक्लियस के अंदर, आपस में, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सो लेट मी टेल यू अबाउट इट्स कॉन्सेप्ट। लेट्स से कि दीज आर द प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड देन दीज आर द न्यूट्रॉन्स, राइट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, ये लेट्स से हीलियम के अंदर है, हीलियम 4। अब आपको अगर हम इनके बीच में फोर्सेस को देखें कि फोर्सेस इनसाइड न्यूक्लियस क्या क्या होती हैं, फोर्सेस इनसाइड न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस होंगी? नहीं, उसको छोड़ दो, अभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स छोड़ दो, वो टेक्निकल है थोड़ी, वैसे सिंपल सोचो, कौन सी फोर्सेस होनी चाहिए? सबसे पहले होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये मैसेस की वजह से है, बिकॉज वी नो दैट एवरी मास इज हैविंग ग्रेविटेशनल पुल, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी 4 न्यूक्लियॉन्स के बीच में, राइट। बट प्रॉब्लम इज कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये एक वीक फोर्स है, ठीक है, ये बहुत वीक फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, नेचुरली ये वीक फोर्स है, राइट। नेक्स्ट थिंग, जो सेकेंड फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक? बिकॉज प्रोटॉन्स आर एट रेस्ट। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं, दे हैव सिमिलर चार्ज लाइक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई दे रिपेल ईच अदर विद इलेक्ट्रिक फोर्स, or they actually attract every particle attract each other with gravitational force, and that gravitational force is very weak force. तो ये जो electrostatic force है, this is strong force, और ये feature of charge होती है, feature of charge। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ between protons होएगी, ये न्यूट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास ना यहाँ पे एक मसला बन गया, वो ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो बहुत स्ट्रांग है और ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी वीक है, तो टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि उनको अवे चला जाना चाहिए बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग रिपल्सिव, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो न्यूक्लियॉन्स अपनी जगह पे रहते हैं। इट मीन्स देयर इज़ अ थर्ड फोर्स एज वेल जो इसके अंदर है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। एंड व्हाट डज दिस फोर्स डू? This force is short range force। इसकी जो रेंज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर होती है, मतलब ये -15 मीटर के अंदर लगती है। इसका मतलब ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगती है, न्यूक्लियस से बाहर ये फोर्स नहीं होती, क्योंकि एक न्यूक्लियस जो होता है इसका डायमीटर जो होता है वो 10⁻⁻15 ही होता है। अच्छा, अब ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, और दूसरी बात ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है।
अच्छा, अब ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो इट मीन्स दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर जेलिंग ऑल द पार्टिकल्स टुगेदर, राइट। तो ये इन सब के बीच में एक ऐसी फोर्स होती है, अगर ये फोर्स ना हो तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एंड इफ न्यूक्लियस कांट एग्जिस्ट तो एटम भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता, एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, फिर तो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। दैट्स वाई ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि यार ये जो न्यूक्लियस है इसको हमें ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, यू हैव टू ब्रेक इट, और इसके सेपरेट न्यूक्लियॉन्स में कर दो, सारे न्यूक्लियॉन्स अलग अलग कर दो। तो उसके लिए आपको जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको सप्लाई करोगे ना, अगर तोड़ना है इसको, तो न्यूक्लियस को तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसे। सो लेट्स से आप जितनी एनर्जी इसको दोगे इसको ब्रेक करने के लिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। सिंपल, अगर आपने एक एनर्जी न्यूक्लियस को दी और वो एनर्जी, उस एनर्जी ने न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग कर दिया, कैसे? उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको ख़त्म कर दिया, राइट। तो जब बाइंडिंग एनर्जी ख़त्म हो गई, चारों न्यूक्लियॉन्स आपने अलग अलग कर लिए, तो हम कहेंगे भाई जो एनर्जी आपने दी है इस न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से ये टूट गया और सेपरेट न्यूक्लियॉन्स में अलग अलग हो गया है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इस एटम या इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो टेक्निकली जितनी एनर्जी ने उसको बाइंड करके रखा होता है, मिनिमम हमें उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ती है उसको ब्रेक करने के लिए, राइट। जैसे होता है कि अगर आपने कोई चीज़ अपलिफ्ट करनी है ऊपर, तो आपको मिनिमम फोर्स कितनी लगानी पड़ती है? जितना उसका वेट है। कोई चीज़ नीचे से ऊपर उठानी है, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है? जितना उसका वेट है उतना ही आपको फोर्स लगानी पड़ती है। जिस तरह ये वेट लिफ्टर वगैरह जो होते हैं, डेड लिफ्ट या जो भी करते हैं, उसमें वेट जब ऊपर उठाते हैं, ठीक है, तो वो कितनी फोर्स होनी चाहिए होती है भाई? जितना नीचे ऑब्जेक्ट है, जितना उसका वेट है, उतनी मिनिमम फोर्स। उससे ज़्यादा लगाएंगे एक्सेलरेट करेंगे, लेकिन मिनिमम उतनी फोर्स चाहिए होती है ऊपर ले जाने के लिए। सेम थिंग इज विद न्यूक्लियस, के आपको न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए जितनी एनर्जी ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी which is responsible for holding all nucleons together is called nuclear binding energy, or the energy which is required to split a nucleus into its separate nucleons is called nuclear binding energy, right? समझ आ गई बात की? अच्छा, तो अभी हम ऐसे करते हैं कि ये तो अभी मैंने आपको खाली इसका एक कॉन्सेप्ट बताया है, राइट। तो अभी हम इसको खैर लिखना भी शुरू करते हैं। ये ठीक है, ये वाला हो गई इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, हमें 3 इक्वेशंस का पता लग गया। सो दीज आर 3 मेन इक्वेशंस। ये बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन है नंबर 1, ये मास डिफेक्ट की इक्वेशन है न्यूक्लियस के लिए, एंड दिस वन इज द मास डिफेक्ट इक्वेशन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। अच्छा, अभी बाइंडिंग एनर्जी से पहले मैं एक यूनिट्स का लिख लेता हूँ। यूनिट्स देखो बेटा, जो मास है, मास की जो यूनिट है, हम एक तो केजी भी यूज करते हैं, लेकिन हम यू भी यूज करते हैं। यू को कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास। ये इसलिए यूज करते हैं कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी मास बहुत कम होती है, तो इट इज इनएप्रोप्रिएट कि हम किलोग्राम में उसको लिखें, राइट। तो इसलिए हम यू में लिख देते हैं। तो ये जो वैल्यू 1U होती है, 1U इज मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। एक चीज, 1U का मतलब है एक न्यूक्लियॉन की मास, और एक न्यूक्लियॉन क्या होता है? व्हाट इज न्यूक्लियॉन? हाँ, न्यूक्लियॉन होते हैं पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। अच्छा, 1U जो है वो मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन है। ओके, नेक्स्ट थिंग, सेम नहीं होता, लेकिन 2 चीजें होती हैं। we can keep mass same, we can use different masses as well, but it depends। और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 1U जो है, दिस इज इक्वल टू 1.667 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये डाटा शीट में लिखी हुई है, नो नीड टू रिमेंबर, डाटा शीट वैल्यू, ठीक है, ये डाटा शीट में लिखी होती है। अब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी सेपरेट मैसेज भी गिवन होती हैं, राइट। समटाइम दे गिव सेपरेट मैसेज, और सेपरेट मैसेज में वो स्लाइटली डिफरेंट होती हैं, मतलब वो सेम नहीं होती, दे आर स्लाइटली
डिफरेंट। अच्छा, अब वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट उनका होता है। अभी डाटा शीट में जो वैल्यूज़ हैं हमने सिर्फ उनको देखना है। तो 1U की ये वैल्यू है। अगर मैं ये कहूँ कि प्रोटॉन की मास कितनी है, प्रोटॉन मास, तो प्रोटॉन मास और न्यूट्रॉन मास अलग से अगर हम देखें तो स्लाइटली वो डिफरेंट होते हैं, बहुत स्लाइटली, वेरी स्लाइटली। मतलब ये कि ये लास्ट डिजिट जो है ये बस चेंज हो रहा होता है, बाकी सेम होता है, राइट। अच्छा, अगर मैं प्रोटॉन मास यू में बताऊं तो 1.0068645 और न्यूट्रॉन मास 1.0074। मेरा ख्याल है कोई एक दो डिजिट में आगे पीछे कर रहा हूँ, बट इट्स फाइन, दीज वैल्यूज आर रिटन इन द डाटा बुकलेट। और ये आगे यू आ जाता है, यू। ओके, सो द यूनिट ऑफ मास कैन बी किलोग्राम, इट कैन बी यू। ओके, अगर तो लेट्स से वो कहते हैं कि भाई एक न्यूक्लियस है और जिसका न्यूक्लियन नंबर गिवन है और आपको प्रोटॉन नंबर नहीं गिवन। अब फिजिक्स में आपको वो देते तो नहीं है, क्या उसे कहते हैं, पीरियोडिक टेबल तो नहीं पकड़ाते। तो अगर उसने खाली बताया हुआ है आपको, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ यूरेनियम 235 है और मैं कहूँ यार मुझे बताओ इसकी मास कितनी है। अब आप सोचोगे कि अच्छा इसमें कितने, ये तो 235 क्या चीज़ है, 235 इज़ न्यूक्लियन नंबर, मास नंबर। तो अब आप कहोगे अच्छा इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, यू डोंट नो, बिकॉज उसने आपको नहीं बताया और आपको पता भी नहीं है और ना पीरियोडिक नहीं। 92 तो चलो मैंने यूरेनियम लिखा, कुछ और आ जाए फिर क्या करोगे, नहीं पता ना। तो द थिंग इज, अगर वो इस तरह का देगा और आपको कहेगा मैथ्स बताओ, तो आप क्या करोगे, आप इसकी मैथ्स के लिए ये करोगे कि भाई 235 इंटू दिस 1.667 इंटू 10⁻⁻27 kg, बस यू विल फाइंड इट्स मास। फिर आप ये 1U वाला करोगे। लेकिन इफ़ यू नो द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन सेपरेटली, तो फिर आप अलग अलग करोगे। फिर आप कहोगे अच्छा प्रोटॉन की ये मास है तो मैं प्रोटॉन को इससे मल्टीप्लाई करूं, फिर न्यूट्रॉन को इससे मल्टीप्लाई करूं, उनको ऐड करूं, एंड हियर इज द टोटल मास, राइट। गॉट इट। कि अगर आपको इफ़ यू डोंट नो प्रोटॉन नंबर, फिर आपको ये यूज़ करना है। इफ़ यू नो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो फिर आपको उनकी मासेस अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि आयरन है Fe56 और क्या होता है, 19 होता है या 26 होता है, याद है किसी को आयरन का एटॉमिक नंबर? 26, 29, शायद 19 हो। अच्छा चेक कर लो। ओके, अब अगर वो ये कहे और कहे भाई अब बताओ कि इस आयरन के न्यूक्लियस की मास कितनी है, हाँ, तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई इसमें जो है इसकी मास निकालनी है। तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 29, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 56 माइनस 29, कितने, 26 क्या, अच्छा एटॉमिक नंबर 26 है। ओके, तो ये 26 हो गया और ये भी 26 माइनस करो तो ये कितना आएगा, 40। अब आपने मास निकालनी है, तो आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग है ना, तो दैट्स वाई आपको ये करना पड़ेगा। पहले आपको देखना पड़ेगा 26 इंटू दिस प्लस 40 इंटू दिस, एंड देन आपके पास जो भी आंसर आएगा आप उसको यू में वापस कन्वर्ट कर दोगे। ऑल दो से कोई बिग डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मेथड ये है कि आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, राइट। सो आपने क्या करना है, आपने मास ऑफ number of protons into mass of protons plus number of neutron into mass of neutron, आपको ये करना है। और ये करके फिर आपको इसको, ये u में आएगा और इसको फिर आप 1.667 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आंसर जो है आपका kg में चला जाएगा, ठीक है। दिस वाज ओनली अबाउट मास। तो मास की यूनिट किलोग्राम भी है, u भी है। 1U मास ऑफ 1 न्यूक्लियन होता है और 1U 1.667 10⁻⁻27 kg होता है। ये डाटा शीट में है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मास भी डाटा शीट में होती है, ठीक है। दिस इज आल्सो डाटा शीट, नथिंग टू मेमोराइज। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस निकालनी कैसे है, उसका तरीका आपको देखना है। अगर आपको सिर्फ न्यूक्लियन नंबर दिया हुआ है, प्रोटॉन नंबर अलग से नहीं पता, तो सिंपली मल्टीप्लाई दिस न्यूक्लियन नंबर विद द वैल्यू ऑफ 1U। अगर आपको अलग अलग पता है तो फिर आप उनके अलग अलग U में मास निकाल लो और फिर आखिर में उसको kg में जो है वो कन्वर्ट कर दो।
फिर इसका क्या मतलब है कि सम ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस? ये आप लेट आए हो ना बेटा, ये हमने बहुत इस पे 10-15 मिनट तो हमने इस पे लगाए हैं कि वो, खैर मैं अभी यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। अब मैं इनकी डेफिनेशंस वगैरह यहाँ लिखता हूँ तो आप उसको दोबारा आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। सो आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ E इज़ इक्वल टू mc²। अब इन सब की डेफिनेशंस लिखते हैं। तो ये क्या है जी कि एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल। ओके, इस इक्वेशन का तो ये मतलब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इज डेल्टा एम। अच्छा, मास डिफेक्ट की हमने डेफिनेशन लिखनी है। सो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होएगी? डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ individual nucleons like proton and neutron and their combined nucleus mass is mass defect. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड देयर कंबाइंड न्यूक्लियस मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और इसका फार्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ। दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। दिस टाइम आई एम नॉट राइटिंग एन, दिस इज अंडरस्टूड कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ देयर न्यूक्लियस। अब ये आगे हम बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक में देखेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो इक्वल क्यों नहीं है, व्हाट इज़ द कोर रीज़न फॉर दैट। अच्छा, अब ये जो बेटा मास होती है, दिस मास कैन बी इन यू, इट कैन बी इन किलोग्राम। ये आपने ध्यान रखना है, यू में भी हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है। ओके, और उनके बीच में रिलेशन ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मास डिफेक्ट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, ये पहले भी हम लिख चुके हैं। ये अंडरस्टूड है, इजी टू अंडरस्टूड कि रिएक्टेंट की मास हमेशा ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की मास हमेशा कम होती है। क्यों? बिकॉज यू आर गेटिंग एनर्जी एज वेल। आपको प्रोडक्ट में बहुत सारी एनर्जी मिल रही होती है, और वो एनर्जी क्यों मिल रही होती है? क्योंकि जो मास है रिएक्टेंट की वो एनर्जी में कुछ कन्वर्ट हो रही होती है। ओके, आफ्टर मास डिफेक्ट वी हैव टू लुक अपॉन बाइंडिंग एनर्जी नाउ। Binding energy has got several symbols. You can write BE, you can write delta E, or you can write E as well. So these are the symbols for binding energy. अच्छा, binding energy की definition क्या है? There are two ways to define it. Number one, binding, it is the amount of energy that is simply use or utilize to bind the nucleons together, right? लेकिन हम इस तरह नहीं लिखेंगे इसको। असल में मतलब ये होता है कि ये वो एनर्जी है जिसने न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखा हुआ है। हम किस में लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि देखो, अगर हमने उसको ब्रेक करना है न्यूक्लियस को, तो हमें मिनिमम जो एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। और इसकी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स से मिसाल के तौर पर अगर आप एक कोकोनट शेल, आपने कोकोनट परचेज़ किया, अब आपने उसको तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए आप थोड़ी सी फोर्स लगा रहे हो हैमर से, आराम से वो नहीं टूट रहा। थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो फिर भी नहीं टूट रहा। जिसका क्या मतलब है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो उसकी बाइंडिंग फोर्स से कम है, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी है। जब आप और थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाओगे फिर भी नहीं टूट रहा, और फोर्स इंक्रीज कर रहे हो, अब वो ब्रेक होना शुरू हो रहा है। तो द मोमेंट इट ब्रेक डाउन, तो आप कहोगे कि यार मैंने अब इतनी फोर्स लगाई है जितनी फोर्स इसके अंदर लग रही थी इसको होल्ड करने के लिए, राइट? तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग फोर्स कहेंगे। गैस में होना चाहिए क्या एनर्जी? नहीं नहीं, ये तो एनर्जी है ना, ये स्टेट नहीं है, ये तो एनर्जी है, एनर्जी। एटम्स को तोड़ेंगे, हाँ, उनके स्टेट होने चाहिए, मतलब जो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल वगैरह पूरा उठाएंगे उनके स्टेट होना चाहिए। अच्छा, मॉलिक्यूल किस, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। सॉलिड मतलब वो लेट्स से वो किसी लिक्विड गैस का ज़्यादा यूज़ करते हैं,
ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इंडिविजुअल होते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती। अगर सॉलिड का उठाएंगे तो वो तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स में ही बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी ना, तो उसको अलग करना ही एक अलग टास्क हो जाएगा। तो यूजुअली गैस का उठाते हैं। ओके, सो इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा। बाइंडिंग एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to split a nucleus into its separate nucleons by taking them to infinite distance. इन्फानाइट एक सिंबॉलिकली यूज़ किया गया है। इन्फानाइट का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स से बाहर ले जाए। इन्फानाइट का मतलब है कि एक दूसरे के लेट्स से इन्फ्लुएंस से अवे कर दें उनको, क्योंकि जब प्रोटॉन्स अलग अलग होते हैं तो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। तो आपने प्रोटॉन को रिमूव करके काफ़ी दूर ले जाना है ताकि उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी ना हों, राइट। तो इसको फिर इन्फानाइट कहते हैं। हाँ, खुद ही दूर, हाँ खुद ही दूर भी हो सकते हैं जब न्यूक्लियस से निकलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, वो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको होल्ड करके रखती है ना। लेकिन जब टूट गए तो फिर सही कह रहे हो, फिर खुद ही वो दूर हो सकते हैं, राइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है। जब आपने तोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स खत्म, प्रोटॉन खुद ही दूर हो जाएंगे, न्यूट्रॉन को आपको दूर लेके जाना पड़ेगा, right? Okay, so amount of energy required to split a nucleus into its separate nucleons by taking them to infinite distance is nuclear binding energy of that nucleus. ठीक है? Amount of energy required to split a nucleus into its separate nucleons by taking them to infinite distance is called nuclear binding energy. Okay, so we have to write the second definition as well. But before we write second definition, let me tell you about its example. Example is कि again I have to draw प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेट्स से हीलियम की बात करते हैं, हीलियम 4 न्यूक्लियस है ये। अच्छा, इसमें दीज आर प्रोटॉन्स एंड दीज आर न्यूट्रॉन्स। अब व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू सप्लाई एनर्जी टू इट। ठीक है, आप ये एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, और जब आपने ये एनर्जी सप्लाई की और इस एनर्जी ने इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया और ये न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो सारे अलग अलग हो गए, मतलब ये प्रोटॉन इधर हो गया, ये प्रोटॉन यहाँ पे है, ये न्यूट्रॉन इधर है, ये न्यूट्रॉन इधर है, लाइक दे मूव अपार्ट, राइट। तो अब आपने जितनी एनर्जी सप्लाई की है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। सो ये पूरा प्रोसेस करने के लिए जो टोटल सप्लाइड इनपुट एनर्जी होएगी उसको हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे, NBE, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अब एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, सो देयर विल बी 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। वन इज जूल जो सिंपल SI यूनिट है, एंड अदर वन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी यूज़ होंगी, ज़्यादा ये यूज़ होंगी क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए कॉमनली जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ होती है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्वांटम में। इनका रिलेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, या फिर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ 1.6 × 10⁻13 जूल। सो दिस इज़ द रिलेशन जो हम यूज़ करेंगे। एक हम मैथ्स के लिए जो लिखा था वो 1U इज़ 1.667 × 10⁻27। एक ये रिलेशन, ये बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ वन एक्सप्लेनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। देयर इज़ अ सेकेंड एक्सप्लेनेशन एज वेल, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी।
which is opposite to first one. Opposite to first one. कैसे? You have separate nucleons and now you have to combine them into a nucleus. Right? उसमें क्या होगा? उसमें you will be getting energy. Energy will be releasing out. तो जब आपने इन चारों न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करके ये न्यूक्लियस बनाना है, इन दैट प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू रिलीज, गिव अवे. आपको कोई एनर्जी नहीं देनी, ठीक है, बल्कि एनर्जी जो है वो वहाँ से रिलीज होएगी. तो जितनी एनर्जी रिलीज होएगी उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे. अब एक सिंपल सी बात सोचें, ऐसा क्यों है, मतलब ये इस तरह क्यों हो रहा है? देखो अभी मैंने आपको पीछे बताया था E इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, दिस इज मास डिफेक्ट. ऐसे ही है, क्यों भाई? दिस इज मास डिफेक्ट. इसकी मास जो है वो न्यूक्लियस की मास कितनी है? एग्जाम्पल के तौर पर 1 ग्राम. एग्जाम्पल के तौर पर न्यूक्लियस की मास 1 ग्राम. चारों न्यूक्लियॉन्स अलग अलग कर दिए, इनकी टोटल मास कितनी है? 1 से ज्यादा होनी चाहिए. मास डिफेक्ट में क्या था? सेपरेट न्यूक्लियॉन्स की मास ज़्यादा होती है, उनके कंबाइंड न्यूक्लियस की मास कम होती है. अब आप सोचो कि पहले इसकी मास 1 ग्राम है, आपने इनको अलग अलग किया, ठीक है, अलग. ऐसे ही है ना, जैसे जिस तरह ये मार्कर है, तो मैं कहता हूँ यार इसकी मास मेजर करो. अब आपने मास मेजर की 1 ग्राम. अब मैं कहता हूँ यार ये देखो, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, इसके अंदर जो वो है वो उसको भी अलग कर दिया, इसकी निब भी अलग कर दी, अलग अलग कर दिए. अब मैंने कहा मास मेजर करो, तो हमारे लिए तो उतनी आनी चाहिए. हम कहेंगे सर उतनी आएगी, क्यों? क्योंकि ये कोई न्यूक्लियस तो नहीं है ना. लेकिन न्यूक्लियस में समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन. अगर आप इनकी मैसेज मेजर करेंगे, ये ग्रेटर देन 1 आ रही है. माय क्वेश्चन इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोचो कि मैस क्यों ज्यादा आ रही है? इधर से देख के ही बताओ कि मैस ज्यादा क्यों आ रही है. व्हाट्स द रीजन? मैस या एक्स्ट्रा मैस कहां से आ गई है? एनर्जी से. क्योंकि देखो आपने एनर्जी भी तो दी है ना, यू हैव सप्लाइड एनर्जी. तो आइंस्टाइन ने कहा था कि व्हेन यू सप्लाई एनर्जी टू समथिंग, मास ऑफ दैट थिंग इज गोइंग टू इंक्रीज. और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी मास अगर 84 kg है, राइट, अब मैं भागना शुरू हो जाऊँ और बहुत तेज़ भागूँ, मतलब मेरी स्पीड ऑफ लाइट के से थोड़ी सी कम हो, तो मेरी मास ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी आ गई है, राइट, या कहीं से एनर्जी मैंने फीड की है जिसकी वजह से मैं भाग रहा हूँ. तो जब भी आप किसी चीज़ को एनर्जी देते हो तो उस चीज़ की मास इंक्रीज कर जाती है, ठीक है. ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है, जो हम यहाँ तो नहीं खैर पढ़ते, ए लेवल्स में नहीं पढ़ते, कि व्हेन एवर यू सप्लाई एनर्जी टू समथिंग, इट्स मास इज गोइंग टू इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास. यही तो था ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टेबल. एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है. तो इसका आंसर बहुत सिंपल है. आप कहेंगे जो एनर्जी सप्लाई की है भाई, ये जो एनर्जी है ये मास में कन्वर्ट होगी है. दैट्स व्हाई इन इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स की जो मासेस हैं दे आर हाई. जी. Assalamualaikum everyone. I'm Salima, is available on the ground floor. If you want to take any guidance regarding German counseling, so you can go and have it, okay? After your class. Okay, second definition. Amount of energy released when a nucleus is formed by joining all nucleons together. एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. हाँ, कोई भी फॉर्म हो सकती है. ओके, सो 2 definitions which are opposite to each other. एक में आपको न्यूक्लियस को तोड़ना है, यू हैव टू गिव एनर्जी. दूसरे में आपको न्यूक्लियस बनाना है. तो फिर केमिस्ट्री में आप एक चीज़ पढ़ते हो, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, राइट. तो ये जो है इसमें आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी चाहिए, तो ये कौन सा रिएक्शन होएगा? एंडोथर्मिक. और इसमें क्या होएगा? इसमें एनर्जी आपको मिलेगी. मिसाल के तौर पर अगर आप 4 न्यूक्लियॉन्स जो हैं, ये प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, आप इनको कंबाइन कर रहे हो. अब कंबाइन जब कर लोगे और एक न्यूक्लियस बना लोगे, लेट्स से ये न्यूक्लियस बन गया, तो क्या होगा? यहाँ से एनर्जी रिलीज होएगी, यहाँ से एनर्जी बाहर निकलेगी.
तो जब ये एनर्जी बाहर निकलेगी तो उसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे, और जितनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी उसको हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है. दिस इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फॉर दैट न्यूक्लियस, राइट? सो टू डेफिनेशंस, सिंपल बट अपोजिट टू ईच अदर. सर वैल्यू सेम है? हाँ, वैल्यू सेम है, बिल्कुल वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होंगी. ओके, अब आखिरी चीज लिख लो, हाउ टू फाइंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट इज दिस फॉर्मूला, E इज इक्वल टू mc². मतलब ये निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी? तो यू विल बी यूजिंग E इज इक्वल टू mc². सो वी से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन इज डेल्टा E इज डेल्टा mc². और अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा M कैसे निकालना है, फिर क्या करोगे? डेल्टा M कैसे निकालोगे? दीज टू इक्वेशंस. अगर वो एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, ज़्यादातर बात न्यूक्लियस की होती है लेकिन रिएक्शंस की भी होती है, तो अगर न्यूक्लियस की बात कर रहा है तो डेल्टा M आप ऐसे निकालोगे. और अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन जिस तरह फिजन है, अब फिजन रिएक्शन हो रहा है और आपको एनर्जी मिल रही है, तो अब आप उसके लिए यही वाली इक्वेशन यूज़ करोगे mc². उसमें M क्या यूज़ करोगे? ये रिएक्टेंट मास माइनस प्रोडक्ट मास, राइट? चलें. सर एम न्यूक्लियस लिया होगा?